Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome to Green Valley Digital Classes. My name is Asrar Al-Fai and I'm here to teach you physics. As you know that already, we have just studied some part in the Zoom classes. But then we must understand more deeply the concept. That's why we have come up with this video series or video lecture. I hope you are staying fine, healthy and happier. Without wasting much of your time, let's get started what we have to understand in this video lecture. So this video lecture will actually deal with what is actually science, that is some basics of physical world, or we can say some basics of the science. So it will deal with science, and then we will understand what are the domains or the types, or we can say parts of science. Since you know the science is actually vast, very vast, so it has been categorized in different parts, for example physics, chemistry and all things. That's why we have to study these types also. Then we will understand what is actually physics. So what is actually physics, that is to be understood in this video lecture. And also we will understand the domains of physics. So we have domains, means the types of physics. Again, physics is very vast, so it has been categorized in different parts or different fields. For example, you can say optics. It deals with, this is a part of physics, it deals with the light. Then also we have mechanics, it deals with motion and all things. So we must understand that part also. And then we will understand what is the approach of physics. So approach, what must be the approach while we are dealing in dealing problems or dealing something in physics. So let's start with science. So if you look at the word science, this is actually a Latin word, as you have already studied it in your lower classes. Science is from Latin word. It's Latin word. And this Latin word is scientia, and from this word science came into existence. Scientia, actually, if we translate it, this scientia in English, we can say this is actually knowledge. So this is the knowledge, or we can say something which we want to know. So this is to know. Either we translate it to know or directly to knowledge. But then what is the difference between knowledge and science? Why we are using different terms in science and different terms in knowledge? So we can see the science is actually systematic knowledge. So this is knowledge, but this is not haphazard knowledge. Not haphazard. This is not haphazard. Or we can say this is actually organized knowledge. Now, to understand this organized knowledge, let's take an example. Suppose we have hydrological cycle, that is water cycle. You know, water in the ocean or sea, it is visible in day, and as such the upper layer is exposed to sun rays. And then after this sun strikes the rays, this gets heated up and then it evaporates. After evaporation, it forms clouds, and this cloud is blown by winds towards upper regions, say for example mountainous region or valleys, and then you can say this cloud either precipitates, or we can say rain showers occur here. And after that, due to the difference in the height from mountain to sea, this is the lower layer and this is the upper layer, and the water just flows back towards this sea, or we can say oceans. And from here you can understand this water is replenished. वापस आपको water मिल जाता है. Then you can see that this knowledge is actually organized here. Firstly, the first step is evaporation, then it goes to clouds. Second step, clouds move, clouds go towards the upper regions, and then we have third part where clouds just drop the rain and rain showers occur, and the rivers, and we have the rivers, and then the water flows back towards this ocean. So this is actually organized knowledge, that is, it's orderly knowledge.
So there is a difference between knowledge and organized knowledge, and this is this science. So that's we can say science is actually organized knowledge. Any understanding but in organized manner, that's actually a science. Now we can see here these things we have actually gained through different observations. So we have observed things. Suppose we are observing that water gets heated up. So it's heated, then this water evaporates and forms this cloud. So this is again the observation, and there are rain showers and other things. So we are dealing with observation. Secondly, we are understanding some part by experimentation. So we do experiments. For example, suppose we have a wood log and you burn it, start burning it. Suppose this is heat and you start burning, and then after some time a gas is evolved, that is actually CO2, carbon dioxide. So by this experiment you can say carbon actually combines with oxygen, gives carbon dioxide. So here we can say this wood log contains carbon, that's why carbon dioxide is formed. If that was not the case, the carbon dioxide would not be formed here. तो अगर आप देखेंगे यहाँ आपके पास कार्बन है and carbon combines with oxygen. Burning का मतलब क्या है? You are combusting. Combustion process means you are combining oxygen and in presence of heat. Triangle is for heat, and here you can understand in this process the oxygen combines with oxygen, then it forms carbon dioxide. Only when carbon is present in this wood log, the carbon dioxide is formed. So that's the case here. By this experiment we can understand this wood log contains carbon. So either we are observing things or we are experimenting. हम experiments कर रहे हैं या आप observe कर रहे हैं, continuously observe कर रहे थे चीज़ों को. इसके बाद आप conclusions निकाल रहे हैं. So you start concluding. Why we do observation and experimentation? Because we need to be accurate in our knowledge. हमारे पास knowledge जो होगी, जो हम निकाल रहे हैं, वो accurate होनी चाहिए. That's why we are experimenting and we are observing things. So in nutshell, we can say science is actually the organized knowledge, but this is gained through observations and experimentation. दो चीज़ें, एक तो ऑब्जर्वेशन आपको करनी है और एक्सपेरिमेंट आपको करना है, तब जाके आपके पास नॉलेज मिलेगी और उसको फिर उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है. और जब आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू दीज ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड साइंस. एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है. वाटर का केमिकल कंपोजिशन एज यू नो, दिस इज एक्चुअली H2O. देन दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, और दूसरा मॉलिक्यूल अगेन H2O होगा. अगेन तीसरा आपके पास H2O होगा. अब हम यहाँ देख रहे हैं, वी आर सीइंग कि आपके पास H2O जो है ये बना है एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मीन्स आपके पास दो हाइड्रोजन्स हैं. तो हमने क्या किया है, पहले वाटर को समझा कैसे है, इसमें कौन से एटम्स हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स, एक तो ऑक्सीजन है एंड सेकेंडली वी हैव हाइड्रोजन. नाउ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद बोथ द हाइड्रोजन्स. दिस इज फर्स्ट पार्ट. तो हमें आपके पास मॉलिक्यूल मिला. फिर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान किस तरह से इंट्रैक्शन हो रहा है, क्या ये क्लोजली है. इफ दे आर क्लोज, हमें जो मिलेगा दिस विल बी आइस. इसीलिए वी से सॉलिड जो आपके पास है, सॉलिड इज अ सब्सटेंस जहां आपके पास मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोज है. देन अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा सा दूर रह रहे हैं, इट विल गो टुवर्ड्स लिक्विड, और अगर ये बहुत ही दूर गए तो इट विल गो टुवर्ड्स गैस. सो अगेन दिस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. पहले ये किसका बना है, किस तरह से बना है, कौन सी बॉन्डिंग है, और फिर कम्बिनेशन कैसा हुआ है, किस तरह से क्लोज है, इंटरमीडिएट है या बहुत ज़्यादा दूर है. देन वी कैन से दिस इज एक्चुअली सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस. सॉलिड मीन्स जिसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता है. लिक्विड में तो चेंज होता है, गैस में भी चेंज होता है. सॉलिड में ये भी चीज़ है कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है. गैस लिक्विड में अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बट देन गैस में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट नहीं रहता है. फॉर मोर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर केमिस्ट्री. So I am actually dealing with science. I am helping you understand that what is actually the science. So science is actually the knowledge
but this is organized knowledge, and here we have observations and experimentation, and this organized knowledge is gained by these two, observations and experiments. So this was about a quick brief about science. Now we must understand the types or domains or the fields of science. See, you see, there are number of things, and we have acquired knowledge from different world, different parts of the world, और different matter. हमारे पास knowledge जो है, हर किसी की आपके पास knowledge है. इसका मतलब जो knowledge हमारे पास अभी है, that is organized knowledge, this is very vast. So this is very vast. It means इसके पास बहुत सारे टाइप्स होने चाहिए, बिकॉज अगर इस वास्ट को एक ही टाइप में आपने रखा तो जमलिंग हो जाएगी. तो इसीलिए इसके हमने पार्ट्स किए हैं. इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन्स और डिफरेंट डोमेन्स. फर्स्ट पार्ट वी से सोशल साइंस. सोशल साइंस ये तो आप 10th से ही पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं. व्हाट इज एक्चुअली सोशल साइंस? ह्यूमंस और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आप पढ़ रहे हैं इसमें. जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी या इकोनॉमिकल साइंसेस हमारे पास है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वो आपके पास इस सोशल साइंस में पढ़ा जाता है. तो दिस इज एक्चुअली सोशल साइंस, और वी से एक्चुअली सोशल स्टडीज. ये पहला पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंस. सेकेंड मेन पार्ट, दिस इज एक्चुअली नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस इट मीन्स जो नेचर को स्टडी हम करते हैं वो साइंस, दैट इज नेचर, स्टडी ऑफ नेचर. सो दिस इज स्टडी ऑफ नेचर. दुनिया को समझते हैं, फिनोमेना उसको समझते हैं. जैसे आप समझते हैं कि बॉडी जो है नीचे की ओर आते हैं, या आपके पास एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमंस है, how they actually grow, how they actually just interact with the surroundings. That is actually the main part in natural science. So nature को study करना है. nature हमारे पास दुनिया में एक तो animals, plants, non living और living part आता है, वो समझना है. उसका composition क्या है, वो कैसे चल रहा है, बैठ रहा है, ठीक है, और grow कैसे कर रहा है. That's actually natural science. Third हमारे पास है, this is actually formal sciences. Formal science. What is actually formal science? Formal science में हमारे पास लॉजिक या मैथमेटिक्स आता है. तो हमारे पास लॉजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स साइंस हो, या हमारे पास थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस हो. यहाँ आप देखेंगे लॉजिक या मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वी यूज सम टूल्स, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन, वी यूज डिवीजन. यहाँ कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है, नेचर के साथ कनेक्शन नहीं है. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस एक्चुअली साइंस डील्स विद इंटेंजिबल थिंग्स, जो हम सेंसेस के साथ देख नहीं सकते. जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, तो ये आप सेंसेस के हिसाब से नहीं देख सकते, सिर्फ आप कैलकुलेशंस में यूज करते हैं. और कभी हम देखते हैं 4 और 5 में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे 5 इज मोर. So this is again the logical science, or simply logic, and then it's not related with this nature. This is only calculation part, and this science is called as formal science. And fourth जो हमारे पास है, this is actually applied science. Applied science. असल में साइंस के 2 पार्ट्स किए गए हैं ऑन जनरल. एक तो हम बोलते हैं प्योर साइंस, इसके अलावा, और दूसरा हमारे पास है अप्लाइड साइंस. आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ प्योर, P इज फॉर प्योर एंड A इज फॉर अप्लाइड. व्हाट इज अप्लाइड, व्हाट इज प्योर, ये समझने की ज़रूरत है. अप्लाइड का मतलब है कि अगर आपके पास जो हमने साइंस पढ़ा हुआ है या साइंस हमें गेन हुआ है, उसको आप अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में. फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स दे क्रिएट थिंग्स, दे फॉर्म ब्रिज, तो उन्होंने ब्रिज बनाया. या आपके पास डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन,
मेडिसिन में आप देखते हैं दे हैव एक्वायर्ड सम नॉलेज एंड दे आर अप्लाइंग, हमको जो है वो ठीक करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। दैट्स एक्चुअली अप्लाइड साइंस। इसमें आप एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि हमारे पास सपोज ये मैग्नेट्स है, तो मैग्नेट में हम देखते हैं कि जो आपके पास मैग्नेट्स है दे अट्रैक्ट, या आपके पास करंट है, जो ही करंट फ्लो होगी किसी कंडक्टर में, तो करंट जब भी फ्लो होगी किसी कंडक्टर में तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आता है, तो कोई पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस कंडक्टर। सपोज दिस इज द कंडक्टर, करंट फ्लो हो रही है, तो इसको आप यूज करते हैं फैंस में। तो फैन इज एक्चुअली द अप्लाइड पार्ट, आपने फैंस में इसको यूज किया है। या आप अभी इलेक्ट्रिकल स्कूटीज देखते हैं, स्कूटर्स देखते हैं, अगेन दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दैट इज एक्चुअली मोटर्स आप रन कर रहे हैं घर में, वाटर मोटर्स या जेनसेट्स यू आर यूजिंग, जनरेटर्स हमारे पास है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी हमारे पास आसानियां हैं जिसकी वजह से साइंस की वजह से आसानियां हैं, दिस इज एक्चुअली अप्लाइड साइंस। इसीलिए हम जो इंजीनियर्स हैं या आपके पास डॉक्टर्स हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर डीलिंग विद अप्लाइड साइंस। वो नया साइंस नहीं बनाते बल्कि जो साइंस है उसको जिंदगी में अप्लाई करते हैं। और दूसरा हमारे पास है प्योर साइंस। प्योर साइंस में ये है कि आप नए लॉज गेन करते हैं, नए नए फिनोमिना देखते हैं, चीज़ों को नए नज़रिए से देखते हैं। जैसे पहले आपके पास मैग्नेटिज्म नहीं था, हमने देखा कि कोई पार्टिकल जो है कोई सबस्टेंस जो है वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, तो इसको बोला गया मैग्नेट। लोडस्टोन की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर मोर यू कैन रेफर टू योर 10th क्लास। तो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है पीसू को, तो यहाँ आपके पास ये मैग्नेटिज्म के लॉज हमने फिर बनाए, किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये समझना, ये इंफॉर्मेशन, ये तो आपने अप्लाई नहीं किया, खाली आपने समझा चीज़ों को। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्योर साइंस। फिर हम उसके हिसाब से जो साइंस होगा, जैसे फिजिक्स हमारे पास है तो हम बोलेंगे प्योर फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। अगेन आपके पास केमिस्ट्री होगा, हम बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स एंड प्योर केमिस्ट्री, एंड सिमिलरली दिस गोज ऑन। सो दिस वाज सम ब्रीफ अबाउट द साइंस एंड टाइप्स और डोमेन्स ऑफ द साइंस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फिजिक्स। क्योंकि हमें फिजिक्स समझना है तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, नेचुरल साइंस की बात है, यहाँ हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बिकॉज ये सोशल स्टडीज़ जो है ये आर्ट्स वाले पढ़ते हैं। फॉर्मल साइंस जो है ये मैथमेटिक्स है, ये असल में अलग साइंस नहीं माना जाता है, बिकॉज ये कनेक्ट होता है नेचुरल साइंस में। हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री एंड अदर थिंग्स। और फिर तो अप्लाइड साइंस तो इसी का असल में है, नेचुरल साइंस का ही असल में एक पार्ट आता है। So going towards natural science. So natural science means nature को study करना, as already said. So natural science. Simple, the definition is nature. Study of nature. कोई भी दुनिया में चीज़ है खुद ही हो रहा है कुछ भी, दैट्स एक्चुअली नेचर। उसको समझना, उसके फिनोमिना को समझना। जैसे हमने अभी एग्जांपल दी कि आपके पास मैग्नेट्स है, एक खुद है, नॉर्थ और नाउथ पोल जो है वो रिपेल करते हैं आपस में। सो दिस इज अगेन फ्रॉम नेचर। कोई बॉडी जो है वो नीचे की ओर जाती है, सपोज दिस इज अर्थ, अगेन दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ये खुद ही जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ आपके पास ये नेचर कर रहा है, खुद ही कुदरती हो रहा है, तो उसको समझना है किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसको हम फिर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगेन हमारे पास ह्यूमंस की आप बात करेंगे, हम समझते हैं सेल्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, और सेल से फिर टिश्यूज बनते हैं, ठीक है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, that you know from your 8th, 9th and 10th class. So I'm actually building some perception what is actually natural science. So this is natural science, understanding the nature. कभी हम अर्थ को स्टडी कर सकते हैं, जियोग्राफी की बात करेंगे, again this is natural science. So natural science is actually divided into main two parts. अब क्योंकि ये भी बहुत वास्ट है, नेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके भी दो हिस्से किए गए हैं, मेन दो हिस्से। एक तो हमारे पास दुनिया में नॉन लिविंग सबस्टेंस आती है, नॉन लिविंग, और दूसरा आपके पास लिविंग है। दो ही कैटेगरीज है हमारे पास इस दुनिया में। एक तो लिविंग है जो खुद ग्रो कर सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं, दे डू देयर ओन प्रोसेसेस, दे टेक फूड, और उसकी वजह से जो अंदरूनी प्रोसेस है, एनर्जीज है, वो गेन करते हैं। और दूसरा आपके पास नॉन लिविंग चीज़ है जो खुद नहीं होते हैं, जो खुद बढ़ते नहीं है। जैसे आप बोलेंगे स्टोन की बात, स्टोन जो आपके पास है ये तो खुद बढ़ेगा नहीं, जैसा है वैसा है।
So this is actually non-living part, and second we have living part. Non-living part is called as physical sciences. इसको हम बोलते हैं physical science. This is physical science. And living part, it's called as biological science. Or we can say more broader term, we use life science. Science वो जो जिंदगी के साथ काम कर रहा है. So this is actually life science. So this is non-living part में आपके पास दो important aspects है हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं. Non-living में वरना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे आपके पास जियोग्राफी है, एस्ट्रोलॉजी है. जियोग्राफी है यानी अर्थ को स्टडी करना है, एस्ट्रोलॉजी है, स्टार्स को स्टडी करना है. इसके बाद हमारे पास वी कैन से ये जो आपके पास ओशनोलॉजी है, ओशंस को स्टडी करना है. अगर जो भी नॉन लिविंग पार्ट वो इसमें आता है. और इसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं. दिस इज एक्चुअली फिजिक्स और दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री आता है. अब जो आपके पास बायोलॉजिकल साइंस है यानी लाइफ साइंस, ये भी बहुत वास्ट है. इसके दो हिस्से किए गए हैं, एक तो प्लांट्स को स्टडी करना और फिर एनिमल्स को स्टडी करना. इसको आप प्लांट को बोलते हैं बायोलॉजी. दिस इज कॉल्ड दिस इज एक्चुअली बॉटनी एंड दिस इज zoology. लेकिन यहाँ आपके पास अब समझने की बात है कि केमिस्ट्री क्या है. व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज फिजिक्स. ये तो हमें पता है. लाइफ को जहाँ जिंदगी है वहाँ समझना है. जैसे प्लांट्स है, दे ग्रो, और एनिमल्स हैं, अगेन दे ग्रो, दे फॉर्म देयर प्रोसेसेस. वो खुद अपने प्रोसेस करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं फूड, खुद ही फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. वो तो उस पार्ट में आएगा. यहाँ की बात है बिकॉज मुझे फिजिक्स में जाना है, यहाँ हमें फिजिक्स समझना है. पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको दूंगा. केमिस्ट्री असल में डील करता है मैटर के बारे में. व्हाट इज एक्चुअली मैटर. मैटर क्या है. मैटर हमें पता है दिस इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज़ हमारे पास जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. फॉर एग्जांपल कोई डिब्बा है, दिस इज एक्चुअली क्यूब, और इसमें कोई मास है, मान लो आप 10 ग्राम का ये क्यूब है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस तरह से, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है दुनिया में. इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट भी ले रहा है. ये कोऑर्डिनेट जो है, सपोज दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज जेड कोऑर्डिनेट. तो तीनों कोऑर्डिनेट्स ये लेता है. जब कोई तीनों कोऑर्डिनेट्स लेता है तो उसका मतलब उसके पास वॉल्यूम है, या हम बोलेंगे वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली दिस व्हाट वी कॉल केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में हम मैटर समझते हैं. मैटर क्या है. अब मैटर में जैसे हमारे पास हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. तो इस सीड्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इस येलो इन कलर, तो हम बोलेंगे इसकी प्रॉपर्टी खासियत क्या है, ये येलो इन कलर है. जैसे हम गोल्ड की बात करेंगे, थोड़ा सा येलो कलर है. ठीक है. सिमिलरली आयरन की बात करेंगे, ब्लैकिश है, ब्लैक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. फिर जो गोल्ड है वो किसका बना है, आयरन किसका बना है. इसी तरह आपके पास वाटर है, ये भी आपके पास मैटर है, इसके पास भी स्पेस है, और ये भी क्या करेगा, ये आपके पास मास है. इसके पास आप वाटर लेंगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, या 1 लीटर, 2 लीटर आप लेंगे, तो इसका मतलब वाटर भी ये है, मैटर है. तो इसको हम समझते हैं कि ये किसका बना है. एक तो ऑक्सीजन का बना है, हाइड्रोजन का बना है. यहाँ से इसमें एंगल कितना है, किस तरह से बंधे हैं. ठीक है. फिर अगेन हमारे पास वाटर इंटरेक्ट कैसे करता है. वाटर में अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो कैसे इसमें बिहेव करेगी. जैसे साल्ट हम डालते हैं तो वो गायब ही हो जाती है, वो घुल जाती है. और अगर मिट्टी डालेंगे तो वो आपको विजिबल होगी, तो वो आपको दिखेगी पूरी मिट्टी में. तो उनको हमने बोला है सस्पेंशन. और हमारे पास जहाँ आपके पास विजिबिलिटी नहीं है, जहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ वो चीज़ है, जैसे आपने नमक डाला इसमें, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लास में कहाँ है, तो हमने उसको सॉल्यूशंस कैटेगराइज किया है. तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है केमिस्ट्री में. दैट्स मैटर. कुल मिल जो भी चीज़ दुनिया में मैटर है उनको समझना है, उसकी खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है. फिर हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, आसानी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे. जैसे हम आयरन जो है वो यूज़ करते हैं कहाँ, वो यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. या आपके पास गोल्ड है, हम यूज करते हैं किसके लिए, ज्वेलरी के लिए, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, ब्रिलियंस उसका अच्छा है.
और फिर हमारे पास एक पार्ट आता है फिजिक्स का। ये तो हमने समझा मैटर क्या है, किसका बना है। और हम दूसरे इसमें साइंस में, दैट इज फिजिकल साइंस या फिजिक्स जो आपके पास है, ये फिजिक्स, इसमें हम समझते हैं कि ये इंटरेक्ट कैसे करता है। जैसे कोई स्टोन है, ये तो हमें पता है कि ये किसका बना है, मगर ये नीचे की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे की ओर? व्हाई इट इज डूइंग सो? या आपके पास कोई बॉडी है, इट्स रोलिंग, इस तरह से ये रोल कर रही है। अगर आप स्लांट में रखेंगे तो क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग मोशन, वेलोसिटी, अदर थिंग्स इन द फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर आप नटशेल में बोलें व्हाट इज एक्चुअली फिजिक्स, फिजिक्स असल में स्टडी करता है लॉज ऑफ नेचर को। तो वी कैन से फिजिक्स इट डील्स विद लॉज ऑफ नेचर। दुनिया के लॉज को समझता है। अब लॉ क्या है? लॉ का मतलब है एनीथिंग दैट इज टू बी फॉलोड, जो हम फॉलो करते हैं। जैसे आपके पास ट्रैफिक लॉ है, ट्रैफिक लॉ में आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट चलना है, गाड़ी चलेगी तो वो लेफ्ट चलेगी, राइट नहीं चलेगी, ये हम फॉलो करें। इसी तरह आपके पास रिलीजियस लॉज है। रिलीजियस लॉज में हमारे पास आप शरई हिसाब से चलते हैं। नमाज आपको पढ़नी है तो वो लॉ है, यानी आपको नमाज पढ़नी है, वो आपको फॉलो करना है, वो आपको लॉ। इसी तरह नेचर कुछ चीज फॉलो करता है। जैसे यहां आपके पास मैंने एग्जांपल दी कि नीचे की ओर जा रहा है, तो इट्स फॉलोइंग ए पाथ टुवर्ड्स द अर्थ, ऑलवेज फॉलोइंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो हम बोल सकते हैं ये असल में लॉ है, यानी बॉडी जो है अगेन वो नीचे की ओर जाती है। या हमारे पास मैग्नेट्स है, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, तो दे आर अट्रैक्टिव। वो आपके पास नेचुरल फेनोमेना है, यानी वो आपस में जुड़ रहे हैं। अगेन वो ये लॉ बनेगा कि नॉर्थ और साउथ हमेशा क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपके पास नीचे की ओर जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे डोमेन्स है, यानी लाइट कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी, वो आपके पास लॉ है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लॉज ऑफ नेचर, क्योंकि ये दुनिया के लॉज हैं, हमने नहीं बनाए हैं, कुदरती तौर पर लॉज है। That's why we are defining accurately. Defining physics actually deals with the laws of nature. So precisely we can define physics as natural science. It is a natural science. यानी nature को study करता है, but it studies laws of nature. और simply हम बोल सकते हैं it studies nature. ये nature को study करता है. So it studies nature and natural phenomena. यानी ये आपके पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है, खुद ही नीचे की ओर जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नेचुरल फिनोमेना एंड दैट वी हैव टू स्टडी इन फिजिक्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, साइंस, डोमेन्स एंड अदर थिंग्स एंड फिजिक्स। मोर वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अबाउट द फिजिक्स। हम फिजिक्स के बारे में और जानेंगे आगे लेक्चर्स में कि फिजिक्स के पार्ट्स कितने हैं, फिजिक्स क्या है, किस तरह से हम फिजिक्स में चीज़ों को समझते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।